بسم اللہ. ماشاءاللہ ابھی سید غلام شاہ صاحب اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے تھے، اور میں اسی کے ساتھ ہی ایک اور ہمارے درمیان شخصیت جناب حضرت قبلہ علامہ مولانا ارشاد ذیشان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اپنے ملفوظات اور نورانی بیان سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود پاک کا ذرا السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی السلام علیکم یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نعت خواں ابھی بیٹھے تھے تو میں نے کہا کہ لائٹ نہیں ہے تو چلو بغیر ساؤنڈ کے جو ہے وہ نعت تھوڑی مشکل ہے تو خطاب میں کر سکتا ہوں. آپ تھوڑا تھوڑا میرے قریب تشریف لے آئیں. میرے پاس جیسا گلا ہے ہمارے نقیب بھائی کا، نہ تو ایسا کہ میرا گلا ہے اور نہ ہی میری کوئی ایسی آواز ہے. میرے پاس تو چند الفاظ ہیں لیکن الفاظ سارے جاندار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور نبی رحمت شفیع امت کی نظر عنایت سے. وہ چند الفاظ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آج ہم اصال ثواب کی محفل میں بیٹھے ہیں تو اس کو سمجھنا ہے کہ آنے کا مقصد کیا ہے، بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، اور ہم میں اور سادات میں فرق کتنا سا ہے، اور یہ کیسی دنیا ہے، اس جہان میں اور اس جہان میں کتنا سا فرق ہے. میں دعاگو ہوں پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ذوالفقار علی شاہ صاحب جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے. اللہ رب العزت ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے فیض سے ہمیں مستفیض فرمائے. ان کے صاحبزادگان پیر سید فخر زمان شاہ صاحب اور دیگر ان کے برادران تشریف فرما ہیں. سادات کرام کا جب غفیر ہے تو میں دو چار الفاظ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. آپ کی صرف مجھے داد چاہیے ہوگی. میں نے اس کے بعد جانا ہے جیسے قاری سعیدی صاحب بتا گئے ہیں تو کتابات کا سلسلہ میرا ایسے ہی ہے. یہاں سے میں نے عارف والا میں پھر اس کے بعد صحیحات میں وہاں بھی میرے سادات کے پاس ہی میری حاضری ہے. تو اب آپ سے گزارش ہے اب صرف آپ جنریٹر کا انتظار نہ کریں، صرف میرے لفظوں کا جو ہے استقبال کریں. موت پر لفظ بولے جاتے ہیں انتقال، وصال، وفات، رحلت. کتنے لفظ ہو گئے؟ 4. اور چوتھا ہوتا ہے فوت، اور ہماری زبان میں کہتے ہیں ٹر گیا. ایک ہوتا ہے پردہ فرما گئے. کتنے لفظ ہو گئے؟ 7 ہو گئے. 7 میں سے صرف ایک لفظ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے، اس فلسفے کو میں صرف 10-12 منٹ کے اندر سمجھا دوں گا. تب تک انشاءاللہ امید ہے لائٹ بھی آ جائے گی اور ماحول دوبالا ہو جائے گا. اب میں صرف آپ سے گزارش کروں گا دوست کوئی اٹھے نہ، ادھر ادھر نہ دیکھے، صرف میری طرف دیکھے اور ان لفظوں کا استقبال کرے. وصال کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا کہ فلاں وصال فرما گئے، سید ذوالفقار علی شاہ صاحب جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وصال فرما گئے. دوستو وصال کا معنی مرنا تو نہیں ہوتا. وصال کا معنی مرنا نہیں ہے. سارے بلند آواز سے بولیں. وصال کا معنی بلند آواز سے بولیں. وصال کا معنی مرنا نہیں ہے. وصال تو وصل سے ہے، اور وصل کہتے ہیں ملاقات کو. کس کو کہتے ہیں؟ ملاقات کو. اور ملاقات وہ نہیں جو آپ کی اور میری پہلی ملاقات ہے. کچھ ایسے چہرے ہیں جن سے پہلی ملاقات ہو رہی ہے. اس ملاقات کو وصل نہیں کہتے. ہر ملاقات کو وصال نہیں کہتے. ہر ملاقات کو وصل نہیں کہتے، بلکہ وصل اس ملاقات کو کہتے ہیں کہ پہلے اظہار محبت ہو، پھر لمبی جدائی ہو، پھر لمبی جدائی کے بعد پھر ملاقات ہو. اس ملاقات کو کہتے ہیں وصل. لیکن نہ تو میرے پاس کوئی دوڑے مائیے ہیں، نہ کوئی اشعار ہیں. میرے پاس یہی الفاظ ہیں جو میں آپ کی جولی میں ڈالنا چاہتا ہوں. ان کا استقبال کریں گے تو کبھی کسی غیر کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گے. آپ بالکل نڈر ہو کر اور آپ دبانگے دہل اس بات کا جواب دے سکیں گے. صرف اور صرف ان لفظوں کو یاد کیجئے گا کہ وصال
उस मुलाकात को नहीं कहते जो आम मुलाकात हो, जो पहली मुलाकात हो, बल्कि विसाल उसको कहते हैं पहले इज़हार मोहब्बत हो, फिर लंबी जुदाई हो, फिर लंबी जुदाई के बाद फिर मुलाकात हो, उस मुलाकात को कहते हैं वस्ल। वस्ल है फसल की जिद। किसकी जिद है? फसल की जिद। फसल होता है जिसको काटते हैं। कोई भी फसल हो तो उसको काटा जाता है। सदाबहार कोई भी फसल नहीं होती, हर फसल को काटा जाता है। फसल है फासले से, ये फासला होता है जुदाई, ये उसकी जिद है तो उसका माना भी उसी हिसाब से होगा। वसल फसल की जिद है। पता ये चला वसल उसको कहते हैं जो जुदाई के बाद हो, जो जुदाई के बाद हो। जब आपने लफ्ज बोला कि वो विसाल फरमा गए तो फिर इसके लिए आपको ये कहना जरूरी होगा, साबित करना पड़ेगा कि इज़हार मोहब्बत कब हुआ था, फिर जुदाई कब हुई। तो अब मुलाकात किससे हो रही है, जुदाई किससे हुई थी, इज़हार मोहब्बत किससे हुआ था और अब मुलाकात किससे होने जा रही है, इसको साबित करना पड़ेगा, वरना ये आपका जो लफ्ज है ये बेकार जाएगा। फिर आप विसाल नहीं बोल सकते। विसाल को साबित करने के लिए इज़हार मोहब्बत साबित करना होगा। आइए बुखारी शरीफ की पहली हदीस में पढ़ने लगा हूँ। मैं हुजूर शेखुल इस्लाम का अदना सा नौकर हूँ। हमारे पास कुरान से लेकर हदीस तक और हदीस से लेकर हुजूर की आल के हर उस लफ्ज पर इतनी कीमत हमारे पास है कि आप में से कोई बंदा इसकी कीमत नहीं अदा कर सकता। इतने कीमती अल्फाज हैं, इनका इस्तकबाल कीजिएगा। आके करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदतुन फीहा कमा तारफा मिन्हा तरफा फीहा कमा तनाकरा मिन्हा इख्तलफा। फरमाया जिसको जिसको मोहब्बत हो गई, जिसको जिसकी पहचान हो गई, आलम अरवा में एक झुंड में एक गिरोह की शक्ल में सारी रूहें इकट्ठी थी, सारी रूहें जमा थी। जिस रूह को जिस रूह की पहचान हो गई मिन्हा तरफा, दुनिया में आकर उसी से मोहब्बत हो गई। सुभान से बोले सुभान अल्लाह, और कुरान दवा से बोले सुभान अल्लाह। दुनिया में आकर उसी से मोहब्बत हुई। आपको मुबारक हो। आज अगर कोई मौलाई है तो वो आज से नहीं है, आलम अरवा से है। आज अगर कोई हैदरी है वो आज से नहीं है, आलम अरवा से है। आज अगर कोई हुसैनी है तो वो आज से नहीं है, वो आलम अरवा से है। आज अगर कोई मुस्तफी है वो आज से नहीं है, बल्कि आलम अरवा से है। मुबारक हो। या कोई राना होगा, कोई जट होगा, कोई चौधरी होगा, कोई किसी कौम से ताल्लुक रखता होगा। आप राने जट चौधरी बाद में बने हैं, मुस्तफा के गुलाम पहले बने हैं। आप राने चौधरी बाद में बने हैं, आप हुसैनी पहले बने हैं। मुबारक हो। आपके माँ बाप भी बाद में बने हैं, आप हुसैनी पहले बने हैं। आलम अरवा से मुस्तफा ने फरमाया जिसको जिसकी पहचान हो गई, दुनिया में आकर वो उसी के नारे लगाता है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिसकी लाइट आ रही है ना वो नारे का जवाब दे। नारे हैदरी, हैदरी। आज जो हैदर हैदर करता है ये आज से नहीं है, बल्कि इसको इज़हार मोहब्बत वहाँ हुआ था। आलम अरवा ने इसने अली को पहचान लिया था, इसने अली को पहचान लिया था। जो आज हुसैन के नारे लगाता है ये आज की बात नहीं है। आलम अरवा में इसने पहचान लिया था जब करबला का मैदान सजेगा जो बाकी बचेगा वो ये हुसैन है। ये पहचान चुका था। जो वहाँ पहचान गया वो दुनिया में आकर हदीस ना भी पढ़े, हाफिज ना भी हो, कारी ना भी हो, आलिम ना भी हो, तो वो हुसैन हुसैन करेगा। जिसने वहाँ ना पहचाना वो जाकर मुहद्दिस बने, मुफक्किर बने, इमाम बने, जो कुछ मर्जी बने, ये जरूरी नहीं है। जरूरी हुसैन की पहचान है। सुभान अल्लाह। वहाँ इज़हार मोहब्बत हुआ। जब इज़हार मोहब्बत हुआ दुनिया में आँख खोली। आप इस बात की तायद बड़ी आसानी से कर देंगे, जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, घर वाले सारे हंसते हैं, वो मिठाइयाँ बांट रहे होते हैं, बच्चा रो रहा होता है। जब वही बच्चा बड़ा होता है वो मरता है। सुना होगा कि फलां मरा था, चेहरे पे मुस्कुराहट सजी थी, मुस्कुरा रहा था, घर वाले सारे रो रहे थे। अजीब बात ना हो गई? जब आया था जिंदगी मिली थी ये रो रहा था, जब मौत आई ये हंस रहा है। जब आया था घर वाले हंस रहे थे, जब जा रहा है घर वाले सारे रो रहे हैं। ये वजह क्या बनी? वजह ये बनी
इज़हारे मोहब्बत कर चुका था। जब दुनिया में आंख खोली तो ये तो देखना चाहता था वो जिससे मोहब्बत करता था वो तो यहाँ है नहीं, वो जिससे प्यार करता था वो जिसे वहां पहचाना था वो यहाँ क्यों नहीं है। वहां तो हुसैन को पहचाना था, अब यहाँ हुसैन नजर नहीं आते। वहां अली को पहचाना था, यहाँ अली नजर नहीं आते। वहां मैंने सिद्दीक को पहचाना था, यहाँ नजर नहीं आते। वजह क्या बनी है? जब यहाँ जुदाई का मामला होता है ये रो रहा होता है, वो सारे हंस रहे होते हैं। जब ये इस दुनिया से जा रहा होता है सब रो रहे होते हैं और ये मुस्कुरा रहा होता है। मुस्कुराता क्यों है? इसे पता चल जाता है जुदाई का सफर खत्म हो गया, मुलाकात का सफर शुरू हो गया। आप इतने बजमे में मुझे ये बताएं, ये जो अल्फाज मैं कह रहा हूँ आपने सुने कभी? तो फिर दाद भी वैसी दे, हाथ उठा के जवाब दे। इजहारे मोहब्बत कर चुका था लेकिन यहाँ पाया नहीं या देखा नहीं। तवज्जो कीजिएगा, दूसरी हदीस वो भी बुखारी की। मुस्तफा ने फरमाया मन अहब्बा शैयन अक्सर जिक्रहू, जिसको जिसके साथ मोहब्बत होती है वो उसी के तराने गाता रहता है। जो जिसका आशिक होंदा गल उसे दी करदा, 100 मकर बहाने करके ओ दई मरने मरदा। जो जिसका आशिक होता है वो उसी की बात करता है। या बात करता रहा, या किसी ने मदीने की बात की आंखों में आंसू, या किसी ने मुस्तफा की बात की आंखों में आंसू, या किसी ने इमाम हुसैन की बात की आंखों में आंसू। ये वजह क्या है? वजह ये है वहाँ इज़हारे मोहब्बत हुआ था, या जुदाई हो गई। अब जुदाई का सिलसिला चलता रहा। अब आखिरी वक्त आया, लोगों ने कहा ये मर रहा है, इसकी जिंदगी निकल रही है, ये तबाह हो रहा है, ये बर्बाद हो रहा है, इसका नाम खत्म हो रहा है। लेकिन उसने कहा ऐसा नहीं है। हुजूर ने फिर हदीस आ गई, फिर भी बुखारी की। मुस्तफा ने फरमाया अल मौतु तोहफतुल मोमिन, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कलाम पढ़ा जा रहा था, मौत ने सबको खत्म कर दिया, मौत ने सबको घेर लिया। ना साहिब ऐसा नहीं है, मौत तो कुछ भी नहीं कर सकती। मौत का तो जायका चखना है, जिसका जायका होता है, जायकों को मजा कहते हैं। जब लेना ही मजा है तो फिर डरना क्या? मौत किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मौत किसी को खत्म नहीं कर सकती। ये मौत कोई खत्म करने वाली चीज नहीं है। अगर ये खत्म करने वाली चीज होती तो हुजूर भी यही कहते। हुजूर ने फरमाया ये तो मोमिन के लिए तोहफा है। मैंने कहा जो खत्म करने आए वो तोहफा कैसे हो सकता है? जो नाम खत्म कर दे वो तोहफा कैसे हो सकता है? कहा है तो तोहफा लेकिन है आशिक के लिए, है तो तोहफा लेकिन है दीवाने के लिए, है तो तोहफा लेकिन है परवाने के लिए, है तो तोहफा लेकिन है हमारे लिए। जो हमारा होगा उसके लिए मौत तोहफा होगी। आका तोहफा कैसे होगी? कहा मेरे आशिक का सबसे बड़ा तोहफा मेरा दीदार होता है। जब वो मरता है तो सामने मुझे देखता है, जब वो मरता है सामने मुझे तकता है। जब मुझे तकता है ना तो वो कहता है मर के पहुंचा था दिल रुबा के वास्ते, कब्र में जब पहुंचूं कदमों में मैं गिरूं, कब्र में जब पहुंचूं कदमों में मैं गिरूं। गर फरिश्ते मुझे उठाएं मैं उनसे यूं कहूं अब क्यों उठूं, अब क्यों उठूं इस पाए नाज से, मर के पहुंचा इस दिल रुबा के वास्ते, मर के पहुंचा इस दिल रुबा के वास्ते। 61 हिजरी सब चले गए, शहीद हो गए। तेरे और मेरे लजपाल अपनी बहन सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की लख्ते जिगर, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, पहला शख्स अल्लाह के फजल से सरजमीन चिश्तिया में हुजूर की आल के नाम पर पहला इदारा मैंने बनाया है। सैयदा ज़ैनब कॉलेज ऑफ शरिया आपके इसी रोड पर इत्तफाक सिटी के अंदर। और अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा है इस छोटी उम्र में, अल्लाह का बड़ा फजल है। उसकी एक वजह है, इकबाल से पूछा तुझे लोग इकबाल क्यों कहते हैं, तुझे लोग इकबाल क्यों कहते हैं? ना तो तू आलिम है, ना तो कोई मुफ्ती है, ना तो कोई खतीब है, तू तो यूरोप की पढ़ाइयाँ पढ़ता रहा, यहाँ आके तू आशिक मशहूर हो गया। तुझे यूरोप भी पढ़ता है, एशिया भी पढ़ता है, बड़े सगीर भी पढ़ता है। वजह क्या है? इकबाल ने ये नहीं कहा कि मैंने नमाजें पढ़ी हैं, ये नहीं कहा कि मैंने रोजे रखे हैं, ये नहीं कहा कि मैंने हज कोई नहीं कज़ा किया। पता क्या कहता है? कहता है दर गोहरे तबिंदाम, दर गोहरे तबिंदाम,
कहा ये जो मैं चमक रहा हूँ ना, ये जो मेरा नाम लिया जा रहा है, इसकी एक वजह है। कहा इकबाल कौन सी वजह है? पूरी नज़म सुना नहीं सकता, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, इकाइयाँ सुकड़ रही हैं और मैं देख रहा हूँ आप आपके चेहरे और मेरे पास बहुत लाजवाब खिताब है। कहा मेरा जो नाम गूंज रहा है ना, इसकी एक वजह है। कहा क्या वजह है? कहा मैंने जिंदगी में अली अली बड़ा किया है, मैंने जिंदगी में अली अली बड़ा किया है। तवज्जो रखिएगा, जब मेरे इमाम अपनी बहन से मुखातिब थे, कहा मेरी बहन, मेरा इम्तिहान था करबला के मैदान तक, मेरा इम्तिहान था करबला के मैदान तक, अब से तेरा इम्तिहान इससे भी बड़ा है। कहा भाई कौन सा इम्तिहान है? कहा यहाँ से लेके जाना होगा और किसी बदबख्त की नजर, किसी बदबख्त की नजर किसी बीबी के सर पर न पड़े। सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ इतनी बुर्दबारी दिखानी है, इतना तहम्मुल दिखाना है, इतनी जुर्रत दिखानी है कि लोग देखते रह जाएं। जवाब सुनिए, सैयदा कायनात की लख्ते जिगर ने जवाब क्या इरशाद फरमाया? कहा मेरे भाई परेशान ना हो, अगर यजीद के दरबार में मेरे लहजे से अली ना बोले तो मुझे ना कहना, मेरे लहजे से अली बोलेगा। ये कलाम हो रहा था, एक बाबा आ रहा है, वो चेहरे पर गर्द है और उम्र से बूढ़ा लग रहा है, लेकिन वो नसरानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे नबी औलाद अली, नारे हैदरी। बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ और इसके बाद की इजाजत चाहूंगा। तवज्जो रखिएगा, सैयद ज़ादा भी लाए हैं, सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब और दीगर सदाते कराम इस बात पर पूरी तवज्जो देंगे और तशरीफ रखें, सारे दोस्त तशरीफ रखें। तवज्जो रखिएगा, आप सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से हम कलाम हैं। इसी असना में एक बूढ़ा शख्स आ रहा है, उम्र में काफी बड़ा लग रहा है और चेहरे पे गर्द है। जब देखा उसको आता हुआ तो हजरत इमाम हुसैन लजपाल ने यूं अपना चेहरा मोड़ा और मोड़ के देखा, देख के कहा कि जल्दी पानी पिला ले, मैं बात खत्म करना चाहता हूँ। अगर आप मेहरबानी फरमाए 2 मिनट बैठ जाए तो फिर मेरी बात पूरी हो जाएगी। जब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की तरफ से मुंह फेरा और पीछे देखा कि वो शख्स आ रहा है, हाथ में खंजर है। जब देखा तो आपने फरमाया कैस बड़ी देर कर दी आते आते। जहां 72 का जिक्र होगा, इस शख्स का भी जिक्र होगा। कैस बड़ी देर कर दी आते आते, इतना सुनना था कि उसके हाथ से खंजर गिर गया। कहा हम तो तेरे इंतजार में मुंतजर थे, तेरे मुश्ताक थे और तू इतनी देर कर दी तूने। वो कहता हुजूर उम्र में आप मुझसे बहुत छोटे लग रहे हैं और ना तो मैं मुसलमान हूँ, मैं तो नसरानी हूँ, आप मुझे कैसे जानते हैं? आपने फरमाया तू छोड़, तेरे बाप का नाम यसू नहीं? से बोले तू छोड़, मैं तुझे जानता हूँ। का हुजूर कोई निशानी तो अता फरमाए, मैं आपको नहीं जानता, आप छोटे हैं और मैं बड़ा लग रहा हूँ उम्र में, आप मुझे कैसे जानते हैं? का जिंदगी में तुझे एक ही शिकस्त हुई थी, तू जिंदगी में एक बार हारा था। उसने कहा हुजूर मैं जिंदगी में एक बार हारा था, उस हार का तो सिर्फ मुझे पता है और तो कोई नहीं जानता, आप कैसे जानते हैं? कहा जिस मैदान में हारा था उस मैदान का नाम क्या था? कहा हुजूर मुबाहिला, वो मुबाहिला था। क्या मुबाहिले वाले दिन क्या हुआ? क्या मुबाहिले वाले दिन मैंने क्या देखा? 5 हस्तियां नमूदार हुई, चैलेंज था 5 हस्तियां आ रही हैं। का वो 5 हस्तियां तो बता कैसी थी? का आगे मुस्तफा थे, पीछे मुर्तजा थे, दरमियान में सज्जिदा कायनात थी। एक बेटा जिसने उंगली पकड़ रखी थी,
एक शहजादा सीने से चिपटा हुआ था, सीने से लगा हुआ था। तवज्जो रखिएगा, मेरे शेख ने एक जुमला यहाँ कहा है, शरीयत मुस्तफा का असूल है वो ये है कि पहले मर्द होंगे पीछे खवातीन होंगी, लेकिन यह असूल बदला, आगे हुजूर पीछे मौला कायनात और दरमियान में सजदा कायनात है। ये असूल क्यों बदला, ऐसा क्यों हुआ? हालांकि सजदा कायनात पीछे होती, मौला मुर्तजा आगे होते, ये दरमियान में चलाने की वजह क्या है? मेरे शेख फरमाते हैं, आप फरमाते वजह ये बनी थी, हुजूर ने फरमाया अली जहां मैं कदम रखूंगा मेरे कदम के निशान पर फातिमा कदम रखेगी और फातिमा के कदम के निशान पर तू कदम रखेगा। का अर्ज की या रसूलल्लाह वो क्यों? आका ने फरमाया जब मेरा कदम देखे तो जमीन देखे, जब तेरा कदम देखे तो आसमान देखे, जमीन आसमान मेरी शहजादी के कदम का निशान भी ना देख सके। जरा हाथ उठाए, हाथ उठाए, हाथ उठाए। मेरी शहजादी के कदम का निशान भी कोई बदबख्त न देखे। दुश्मनों से मुकाबला होने जा रहा है और हया का ये मयार होना चाहिए। मेरी शहजादी जा रही है, मेरी शहजादी जा रही है। मुझे इतना बताएं, जिसके कदम का निशान कोई नहीं देखने देता, कैसे कोई बदबख्त करबला के मैदान में कोई देख सके? अंधे ना हो जाए सारे। फरमाया कैसे हो सकता है शहजादी मेरी हो? अब ये हस्तियां, इनके बारे में वो बता रहा है, हस्तियां कितनी गिनवाई? सारे बुलंद आवाज से बोले, मैं बात मुकम्मल कर रहा हूँ। कितनी हस्तियां? 5। आपकी हाथ की उंगलियां कितनी हैं? अगर 6 हो जाए तो फिर हाथ सोना लगेगा, हालांकि ताकत बढ़ जाती है। जितनी ज्यादा उंगलियां होगी ताकत तो बढ़नी चाहिए, लेकिन ये सुनब क्यों चला जाता है? खूबसूरती कहाँ खो जाती है? बल्कि वो तो ताने का मसला बन जाता है। लोग तो उसको 6 उंगलियों वाला कह के चिढ़ाते हैं, जिसकी 6 हो जाएं। एक अर्जी, एक लतीफ नुक्ता आपको देना चाह रहा हूँ, बात फिर मुकम्मल हो रही है। कहा ये 5 उंगलियां हैं, मौला 6 हो जाएं, ये सोना क्यों नहीं लगता? कहा ये सारी कायनात 5 तन पाक का तो सदका बनाई है। वो 5 के बगैर तो कायनात नहीं सजती, तेरा हाथ कैसे सोना लगेगा? जब ये कायनात सोनी नहीं लगती इनके बगैर, तो फिर तेरा हाथ क्या चीज है? तवज्जो कीजिएगा। अब इसने कहा हुजूर वो 5 हस्तियां आ रही थी, कहा जो सीने से लगा हुआ था ना उसको गौर से देखा था, उसको गौर से देखा था। अब इसकी बात सुनिए। कहा हुजूर हम मुकाबले में खड़े थे, पता नहीं क्या हो गया था, उनका जलाल ही इतना था, बस बंदों का पता चलता था, नजर कुछ नहीं आता था, नजर कुछ नहीं आता था, मैं तसल्ली से नहीं देख सका। कहा फिर देख, सोच जो सीने से लगा था वो कौन था? कहा हुजूर अब इतनी पहचान उस बच्चे को कैसे पहचान सकता हूँ? कहा जो सीने से लगा था ना वो हुसैन मैं हूँ, मैं वो हुसैन हूँ। सवाल ये नहीं है कि हुसैन का सर कटा क्यों, सवाल तो दर्दनाक सवाल ये है कि सर ही काटना था तो फिर कलमा क्यों पड़ा? सर तो तलवार से काटना था, कलमा पढ़ने की जरूरत क्यों पेश आई? तुमने कलमा पढ़ के हुसैन के साथ जो किया। अब ये कैस, ये नसरानी था, इसने कहा हुजूर जल्दी करें, वक्त के दामन में गुंजाइश शायद नहीं है और शायद ये वक्त फिर न मिले मुझे, अभी कलमा पढ़ाएं, अभी कलमा पढ़ाएं और मैं आपकी तरफ से लड़ना चाहता हूँ। साहिब बात ये है, जो इधर से इधर आ जाता है, ये एक बाउंड्री लाइन है, जो इधर से इधर आ जाता है। मेरे शेख ने हमारी तरबियत करते हुए ये कहा था, बेटा आपको और मुझे अपने दादा परदादा से ऊपर का पता ही नहीं, हम अपने शजरे से वाकिफ नहीं, मौलवी अपने शजरे से वाकिफ नहीं, पता नहीं उसका 5वां दादा मुसलमान भी था, सिख था, कौन था, काफिर था, क्या था। कायनात में अल्लाह ने एक ऐसी जात बनाई है जिसको सैयद कहते हैं। फरमाया ये जो जात है ना, कायनात में सिर्फ ये एक ही जात है, ये कह सकती है हमारा दादा भी सैयद था, परदादा भी सैयद था, हमारा नाना भी सैयद था, हम आज से लेकर आखिर तक, हम आज से लेकर आखिर तक। तो हमारे शेख फरमाते हैं, बेटा जो कौम तक नहीं पहुंच सकता वो मकाम तक कैसे पहुंच सकता है? आलिम की फजीलत तब तक है जब उसके पास इल्म है, वो पागल हो जाए तो इज्जत खत्म, इल्म गया, सारी औकात खत्म हो गई। सैयद जैसा भी हो,
सैयद जैसा भी हो, सैयद को जो औकात जो मकाम मिला है वो किसी मौलवी के पढ़ाए हुए इल्म से नहीं मिला, वो उन्हें रसूल की वजह से मिला है, हुजूर के अदब की वजह से मिला है। साईं मेरी बात मुकम्मल हो रही है। जिंदगी और मौत यहाँ खड़ी है। पाकिस्तान चाइना का दोस्त है, अल्लाह न करे जंग लगे, वो अपनी फौज भेज दे पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, तो दो फौजी खड़े हों बॉर्डर की लाइन पर, एक चाइनीज हो एक पाकिस्तानी हो, दोनों मारे जाएं जंग में, आप मुझे बताएं क्या ये दोनों शहीद हैं? बोल तो दें, क्यों परेशान हो रहे? बुलंद आवाज से बोल। नहीं शहीद हैं। क्यों शहीद नहीं है भाई? इस्लामी रियासत मुल्क पाकिस्तान मुसलमानों की हिफाजत के लिए दोनों मरे हैं, तो दोनों शहीद क्यों नहीं है? आप कहेंगे एक शहीद है और एक मुर्दार है। बोले ना ना झिझके ना, आप कहें ये तो मेरी जिम्मेदारी है ना इस बात को साबित करना। एक मुर्दा है और एक शहीद है। शहीद जिंदा होता है। तो मैं आपसे पूछूं जिंदा कौन है? आप कहेंगे जिसने कलमा पढ़ा। मैं कहूंगा मुर्दा कौन है? आप कहेंगे जिसने कलमा नहीं पढ़ा। मेरा सवाल है दोनों इस्लामी रियासत की हिफाजत में मारे गए, तो दोनों शहीद क्यों नहीं? आप कहेंगे दरअसल एक मोमिन नहीं। मैं पूछता हूँ मोमिन कौन होता है? आका फरमाते हैं जो अली तुझसे मोहब्बत करे वो मोमिन होता है, और जो मोमिन हो जाए वो कभी नहीं मरता। तो जिंदगी इतनी सी है। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदा रह जाएं तो फिर एक काम करें, अली से इश्क करें। अली का इश्क जिंदगी है, अली का प्यार जिंदगी है, अली की मोहब्बत जिंदगी है, अली की उल्फत जिंदगी है। अली से प्यार करते जाएं, कभी नहीं मरेंगे। फिर आपके चलीसमे पर भी गुब्बारे लगेंगे, आपके चलीसमे पर भी गुब्बारे लगेंगे। तो जिंदा होने की ये जिंदा होने की बात है ना, ये जिंदा होने की अलामत है। हर कोई जिंदा थोड़ी होता है, जिंदा वही होता है जो उनसे वफा करता है। मेरे दामन में बहुत सारा मवाद था, लेकिन वक्त के दामन में जो गुंजाइश थी मैंने अपनी हाजिरी पेश कर दी है। सिर्फ नौकरी के लिए आया था, वो नौकरी में अर्ज करके इत्तफाक सिटी के अंदर सैयदा ज़ैनब कॉलेज ऑफ शरिया, ना तो हम कभी चंदा मांगते हैं और ना हमें हमारी ये तरबियत है। तो एक रिक्वेस्ट है, अगर सैयदजादे अपनी औलादों को पढ़ाएंगे नहीं तो दुश्मन सर पे आ चुका है। एक वक्त था जब इमाम हसन को मस्जिद में दाखिल होने से रोक दिया गया था। जब इमाम को रोक दिया गया था तो फिर मुक्तदी क्या चीज? दुश्मन सर पे आके खड़ा हो गया। इस वक्त खारजियत वो सर चढ़ के बोल रही है। कोई यजीद को, पिछले दिनों एक दोस्त से मेरी बहस हो गई, तो हजरत मुझे कहने लगे कि यजीद का कसूर क्या था? मैंने कहा यजीद का कसूर यही है कि वो तेरा मामा लगता है, वो तेरा मामा लगता है, उसका यही कसूर है क्योंकि तेरी सोच वही है। बात इतनी सी है यार, अब वक्त नहीं है। अब अगर सैयदजादे सिर्फ अपनी गद्दी पर बैठ के सिर्फ और सिर्फ तवीज़ दागा करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। अगर अपने बच्चों को इल्म नहीं पढ़ाएंगे, आपके बच्चों के लिए इल्म लाजिम और मलजूम हो चुका है। दुश्मन जहाँ खड़ा है तो ना सोचें कि ये कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है। ऐसा ना करें अपनी औलादों को। मैंने ये जो इदारा बनाया है, मैंने सिर्फ सदात की नौकरी के लिए बनाया है, सिर्फ इस नौकरी के लिए बनाया है। वो इदारा वो कॉलेज ऑफ शरिया है। 9th क्लास की बेटी जो 9th क्लास पास, मिडिल क्लास जो पास होगी, 9th में उसका दाखिला होता है। पहला सेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह के मदद से जारी है, उसका एडमिशन होता है। वो साथ मैट्रिक साइंस के साथ आर्ट्स के साथ दोनों ऑप्शन मौजूद होते हैं। साथ आमा, वो दरस निज़ामी का पहला कोर्स है आमा, उसको कहते हैं आमा, 2 साल का कोर्स होता है। फिर आगे वो साथ FA करती है और FA के साथ 2 साल का कोर्स होता है, उसको कहते हैं खासा तक पढ़ना काफ़ी होता है। फिर उसके बाद BS इस्लामिक स्टडी वो किसी भी यूनिवर्सिटी से करना चाहें, कॉलेज से करना चाहें। हमारी 4 साल याद रखना, ये नौकर आज आपके पास आया है। शायद मुझे हुजूर की तरफ से ये कहा गया हो तो मैं आया हूँ, तो ये पैगाम लाया हूँ। अब आपकी औलादों को पढ़ने की जरूरत है। आप इस बात से इत्तफाक करेंगे इंशाअल्लाह। जी हमारे अपने बदल चुके हैं, गैरों की तो बात ही नहीं हो रही। अब हमारे अपने कह रहे हैं। एक मौलवी सारी जिंदगी आले बैत के नाम पर खाता रहा, रावलपिंडी का, वो पिछले दिन कह रहा था आल गुमराह हो सकती है, साहब गुमराह नहीं हो सकते। कमला ना हो तो मुस्तफा ने फरमाया है अगर असहाब भी आल के साथ जुड़े रहेंगे तो नहीं गुमराह होंगे। बुलंद आवाज से तो बोले यार सुभान अल्लाह।
وہ ایک ادھر سے چڑھتا ہے، کوئی ادھر سے، کوئی سجدہ کائنات کو خطاب پر کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ وقت بدلتا جا رہا ہے، اگر اب آپ نے اپنے بچوں کو نہ پڑھایا اور ادھر توجہ نہ کی تو پھر یاد رکھنا یار آپ کے پاس تو کمی کسی چیز کی نہیں ہے، آپ تو دنیا بچوں کو پڑھائیں ہی نہ۔ میں تو یہ کہتا ہوں آپ دنیا پڑھا کے کیا کریں گے؟ بادشاہت تو اللہ نے آپ کو دے دی ہے۔ کون سا سید ہے جو آج بھی جو لاچار ہو؟ کوئی سید لاچار ہے؟ آپ کو تو صدقہ بھی نہیں لگتا، زکات بھی نہیں لگتی، کیونکہ یہ میل کچیل ہے۔ سید میل کچیل نہیں کھاتے، سید میل کچیل، یہ ہاتھوں کی میل کچیل ہوتی ہے، سید میل کچیل نہیں کھاتا۔ صدقہ زکات اس لیے حرام ہے۔ تو میری بات سے اتفاق جو کرتے ہیں سید زادے ذرا ہاتھ کھڑا کریں، اور سارے جو غلامان صدات ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ انشاءاللہ آپ، میں نوکر عاجزی پیش کرنے آیا تھا، میں نے کر دی۔ اللہ رب العزت آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔